एक्चुअली दोस्तों यह मेरा पहला वी ब्लॉग वीडियो है। बेसिकली मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि मैंने बहुत से फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन किया और लाइक ए फिलिपीन एक्सपर्ट इन द लाइक ए पीपल इंडियन एक्सपर्ट इन द फिलीपींस, Indians in the Philippines, single Indian in the Philippines. I see many comments that दोस्त लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है यहाँ पे और वो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। So I thought let's start a channel जो कि आपको हेल्प करे और आपको some basic tips दे कि how you can go to Philippines, dating a Philippine girl और आप यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन को समझ सकें before you go to Philippines. I am super excited and maybe my tone and my voice is not clear, but मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा about the Philippines, this country and the people in the Philippines, culture, food, everything. So let's start with my basic information about me. My name is Manish Bahogna and मैं basically देहरादून उत्तरांचल से हूँ और मैं फिलीपींस में 10 साल से रह रहा हूँ। I think मैं 2011 में फिलीपींस मूव किया था। As a working, I am a IIT consultant and I'm married a Filipino. We are married almost 10 years in. मेरा एक बेटा है. I know somehow now that the Philippine people, culture, food. So मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे suggestions और राय आपके लिए हेल्पफुल हो और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ like and subscribe. So let's go to the basic things. So Philippines name is the Republic of the Philippines. It's complete a Catholic country. Means that 80 to 90% people are Catholic. Like in India, we are 60 to 70% are Hindu, but in the Philippines, you will find every street maybe church. So basically, it's a Christian country. The Philippines, like in India, you see the land, but in the Philippines, when you go to the Philippines, you will see all the surrounded by a sea. Means if you suppose if you will go any place 3 hours driving, you will see the sea. So समुंदर ही समुंदर है। मछलियाँ जो है वो यहाँ पे चीपर नहीं है, वो यहाँ पे स्टिल एक्सपेंसिव है। But some if you will go to the remote villages, some towns, very small towns, आपको जो fish होगी वो maybe cheaper होगी, but otherwise it's expensive. You will see the Philippines is surrounded by 7,000 द्वीपों का समूह है, small द्वीपों का समूह है। So there are many beautiful beaches in the Philippines. Like you just go drive and then just chill in the beach, drink beer. You can and just enjoy the sunbath and just swimming in the sea. So it's awesome. So that's why the people say more fun in the Philippines. So of course here's a fun, but same time a fun with the safety. फिलीपीन की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 11 करोड़ है, जिसमें से 50% जो है वो मेल है एंड 49% समथिंग जो है फीमेल है। फिलीपींस इकोनॉमिक जो मोस्टली जो डिपेंड है वो है टूरिज्म, सेकंड द बीपीओस एंड द थर्ड इज द ओवरसीज। ओवरसीज मीन्स दैट जो यहाँ के लोग हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कि सिंगापुर हुआ, आपका यूके हुआ, यूएस हुआ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज मोस्टली फॉर द डॉक्टर्स, नर्सेस और द हेल्प वर्कर्स, जो बेसिकली यहाँ की इकोनॉमी डिपेंड करती है मोस्टली द 3 पिलर्स। फर्स्ट हुआ आपका बीपीओ सेक्टर, टूरिज्म एंड ओवरसीज एम्प्लॉयज़। सो बेसिकली यहाँ का जो फूड है, यहाँ पे आपका जो आपको बताऊँगा, यहाँ पे जो मोस्टली द फूड का जो है वो है आपका नॉन वेजिटेरियन। इफ़ यू वांट टू ईट ए वेजिटेरियन इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड वेजिटेरियन। यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे अगर वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो उसमें तो लाइक दे पुट सम चिकन, समटाइम्स दे पुट सम पोर्क, ओके। If you are someone vegetable
then you will still find some pork, some pieces of pork in the foods. If you are Hindu हैं और very strict Hindu हैं जो ना चिकन खाते हैं, completely vegetarian हैं, then it's hard for you, especially when you go to outside the house or you go to traveling in hotels, you stay in the resort or something, then आपको वहाँ पर आपको problem होगी to find a pure vegetarian food, because it happened with my dad when I invited my dad to come here, and he was a ex-army man, so he came to here. He's a completely, मेरे जो dad हैं वो पूरे vegetarian हैं, so he don't eat egg anything, so जब भी मैं उनको कभी ट्रिप पे लेते जाता था तो हम स्पेशली उनके लिए फूड बनाते थे यहाँ से, एंड देन वी पैक दैट फूड फॉर लाइक 2 days or 3 days, एंड देन वी जस्ट बाय राइस एंड देन फूड. वन थिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो 3 times राइस खाते हैं. मीन्स ब्रेकफास्ट में आपको चावल मिलेंगे और आपको लंच में भी चावल मिलेंगे, एंड इवन स्नैक्स, इफ लाइक स्नैक्स यहाँ पे चावल हैं और रात को भी आपको चावल मिलेंगे. कंपेयर टू इंडिया, यू हैव इन इंडिया सुबह उठो, मम्मी आई वांट द परोठा, आई वांट, सो दैट यू से, सो समटाइम मिस दैट. Like in India, you have a seasonable fruits, veggies, like like a salad. You will gajar ka halwa in the winter. So यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आपको मिलेंगे तो तकरीबन सब कुछ मिलेंगे, but वो नहीं कि it depend on the season. So if you are a really Indian and you living with the if you have a wife, if you have a girlfriend and you want to, अगर आपकी जो प्रेमिका है वो फिलिपिनो है और आप उससे शादी चाहते हैं करना, then sometimes it's hard for you, because sometimes the Philippines don't like 100% spicy food always. So आपके लिए यहाँ पे so आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा उनके खाने के साथ. और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, देन यू हैव टू फाइंड समवन हु विल कुक फॉर यू. और अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो आप जिस सामान खरीदिए, यहाँ पे बहुत से इंडियन स्टोर हैं, जस्ट गो एंड बाय. थोड़े से महंगे एक्सपेंसिव पर आप अपने लिए बना सकते हैं. ओके, वन मोर थिंग है कि यहाँ के खाने का सबसे यहाँ पर जो खाने की सबसे बिग प्रॉब्लम है हिंदुओं के साथ, वो है बीफ. यहाँ पे जो 90% लोग हैं और 95% लोग हैं वो बीफ खाते हैं. बीफ है गाय का मांस. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हिंदू कल्चर एंड फिलिपिनो कल्चर में. सो अगर आपकी वाइफ और अगर आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो फिलिपिनो है, सो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो बीफ खाती है. और समटाइम अगर वो आउटसाइड बीफ खा रही है और आपको स्टिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बट समटाइम यू कैन टॉक with her and you can say okay, you can eat outside, or you can sometime if you want order, but don't cook at home. Like मेरी जो वाइफ है वो खाती है, बट now वो भी बहुत सालों से नहीं खा रही है. So sometime वो खाती है like, but that's fine for me, but we don't cook at home. मेरा जो बेटा है वो भी नहीं खाता है. So it depend on them. I'm not forcing them or telling them don't eat what I want to eat, what they want to eat. It depend on them. But अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, उसके अगर आप उसका सम्मान करते हैं, अगर आप उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसमें कोई आप कुछ भी कर सकते हैं. उसके लिए आप थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं. So that's the thing. So if you are a pure Hindu, vegetarian and follow very strictly follow, अगर आप हिंदू कल्चर को very strictly follow करते हैं, तो आपको पहले ये समझना होगा कि किसी भी फिलिपिनो के साथ संबंध रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि वह बीफ खाती है. शी हैज़ ए डिफरेंट
preference for eating, doing things or thing. Okay. सेकेंड यहाँ पे मोस्ट द आउटिंग जो थिंग है वो है मॉल्स। यहाँ पे मॉल्स आपको हर जगह मिलेंगे, SM मॉल्स, रॉबिन्सन। यहाँ पे लोग जो हैं मॉल्स में जाना पसंद करते हैं। मीन्स ऐसा है कि जैसे आपको कुछ नहीं करना है तो चलो मॉल चलते हैं, गो अराउंड में आउटिंग लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। लाइक इंडिया में जो है हमारी सोसाइटी जो है वो है सेविंग है, बट इन द फिलीपींस दे आर नॉट। इन द फिलीपींस में जो है यहाँ की जो सोसाइटी है वो सेविंग नहीं है। यहाँ पे जो सोसाइटी को आप कह सकते हैं कि कंज्यूमेबल है। मीन्स यहाँ पे लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लिस्ट दे वांट टू बाय मीन्स वो जाते हैं आउटसाइड, खाते हैं फैमिली के साथ, मीन्स पैसे आए गए। But in India, you say, okay, we will eat. In India, we say, yeah, we will just buy here in home. We will cook and eat. No, but here people wants to go outside. So if you have a girlfriend and अगर वो say want to go mall, go with her, and always ready to go to the mall. Otherwise, maybe you will break up with her. And one thing mostly important, if you अगर आप फिलीपीन में रहना चाहते हैं तो most important part है कि you should अंडरस्टैंड द कल्चर एंड, और आपको किसी दूसरे का कल्चर को समझना और उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। नेवर थिंक दैट यू आर हिंदू सो यू आर मोर, योर रिलीजन आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर कल्चर देन अदर रिलीजन, बिकॉज बोथ रिलीजन्स आर completely different हैं। Religions is the main point is same है कि always live with happy, help each other, so that's important. And if you are living in the Philippines and you have a Philippine wife, अगर आपकी wife फिलिपिनो है, still you can be आप अपने कल्चर का, अपने रिलीजन का सम्मान वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप इंडिया में करते हैं। मैं हिंदू, तो मैं अपनी प्रेयर एवरी डे करता हूँ, एंड समटाइम्स शी आल्सो to join me, or sometimes I go to church. So it's nothing make your religion will not आपका जो रिलीजन है वो कभी छोटा नहीं होगा और आपका बिलीफ कभी छोटा नहीं होगा अगर आप दूसरे रिलीजन का सम्मान करें। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट योर ओन religion also. दोस्तों please subscribe if you like this video, and I'm sure I will give you more tips so that how you can start dating with a Filipino girl, or how you can start dating with a Filipino girl online, and what steps you should take, and what tips you should follow, and what things you should be remember. I'm not saying that I'm like a love guru or something, ऐसा कुछ नहीं है, but just I am living here, I live with or the people, I know some friends, I have Filipino friends, we drink, we hang out, we talk. There are the female friends of my wife, so I also know them, so I know their thoughts, mentality about Indians. When they talk, then they tell me. So please be ready and please be motivate me to make more videos for you, and I will try. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हिंदी में हो पूरी तरह से, and I want to help you, just help you, but I want some motivation from you. So please subscribe. Thank you. Have a good day.